Good evening, children. Let's move from our yesterday's session. Again, in this same exercise, we are going to use same formula, that is distance formula. Let us have a recap. Suppose we are having 2 points. The first point is P, say xy, and another point is A, like 2, 3. These are 2 points. Point P, xy, and another point A, 2, 3. And we have to find the distance between these 2 points. So what we will do for finding the distance between these 2 points, suppose this is our point x1, y1, this is our point x2, y2. The formula that we are going to use, or we have yesterday used, is distance AP is equal to, or I will prefer to write AP square is equal to, by doing so the square root is removed in the right hand side. AP square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is our formula that we used yesterday and we are going to use today also. So 2 points are given. The first is x1 y1, second is x2 y2, and we have to find the distance between these 2 points, that is distance AP. We are using the formula AP square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which will be x2 minus x1 whole square, y2 that is 3 minus y1 that is y whole square, and further expansion. क्लियर? ठीक है बेटा? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है. लेट्स रीड दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम. रीड. See, the question is, if a point is given A 2 0 and another point is given B 0 3, 2 points. Are 2 points, find the equation of locus. Our exercise is about locus. Find the equation of locus of a point P, and the condition given is such that AP is equal to twice BP. Remember, this is given to us. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. तो हम लिखते हैं बेटा आंसर में. The answer is, see, the points given initially are A 2 0 and another point given is B 0 3. ऐसे 2 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है ना? चलो, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P. तो हमने लिखा लेट P xy is any point on locus. क्योंकि हमें मालूम है लोकस मतलब अनेक पॉइंट. जैसे आसमान में अनेक तारे होते हैं, ऐसे लग के अनेक तारे होते हैं और उनसे एक पैटर्न बनता है, वैसे ही ऐसे अनेक सारे पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिससे ये हो गई इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिससे कोई एक पैटर्न बन सकता है, इस कॉल्ड एज अ लोकस. तो इन शॉर्ट लोकस पे अनेक पॉइंट होते हैं, उनमें का एक पॉइंट P xy. अब इनको प्रॉपर टैगिंग कर देते हैं हम लोग. तो ये रहा बेटा हमारा x1 और ये रहा y1, ये रहा बेटा हमारा x2 और ये रहा y2. A और B गिवन है. हमने बोला P xy is any point of the locus. Fine. x1 y1 x2 y2. So initially I am going to find, therefore by distance formula we are going to find, by distance formula, AP square is equal to, okay, AP square is equal to, again the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is x2 minus x1 and x minus 2 whole square. ये रहा x2, ये रहा x1 plus y2 minus y1, that is y minus 0 whole square, which means AP square is equal to x square minus 4x plus 4 plus
y माइनस 0 तो y हो जाएगा, ठीक है बेटा, और उसका स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। तो ये हमने इस प्रकार अभी तक यहां तक फाइंड आउट कर लिया है ab स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, bp स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो हमने लिखा सिमिलरली bp स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हम लोग चेंज कर देते हैं, और क्योंकि बात bp की होने वाली है तो मैं इसको x1 y1 बोल दूंगा। तो बेटा ये रहा आपका x1 y1 और ये रहा x2 y2। bp स्क्वायर की बात होगी, आप आसानी से स्वयं भी कर सकते हो। तो मैं लिखता हूं bp स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, बोले तो x माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, बोले तो y माइनस 3 होल स्क्वायर। 11 12 में जिसे एक बार हमने फार्मूला लिखा है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका x स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 0 x स्क्वायर होगा, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर का एक्सपांशन y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, एंड इन दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड bp स्क्वायर आल्सो। हमें मिल गया बेटा bp स्क्वायर। इतना मिलने के बाद में फिर हमको याद आया कि जो कंडीशन की बात है वो कंडीशन है AP इज इक्वल टू ट्वाइस BP। तो हमने लिखा गिवन कंडीशन इज AP इज इक्वल टू ट्वाइस BP, ठीक है। और हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट किया है स्क्वायर में फाइंड आउट किया है। चलो ठीक है, यहां पे हम लोग लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिखने पे ये बन गया आपका AP स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जरूर करिएगा, वो गलती से छूट न जाए, 4, और BP का स्क्वायर बेटा BP square. So we got AP square equal to 4BP square after squaring both sides. Now the value of AP square is here, that is x square minus 4x plus 4 plus y square is equal to 4. और 4 लिख रहे हैं तो BP square हम लोग ब्रैकेट में लिखने वाले हैं। तो BP square का वैल्यू बेटा हमारे पास में x square plus y square minus 6y plus 9. In this way I have put up all the values, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा समझने के लिए आसान हो इसलिए मैं इस स्टेप को फिर से एक बार लिखता हूँ। AP स्क्वायर इक्वल टू 4BP स्क्वायर जो है बेटा, तो 4BP स्क्वायर लार्जर होने के कारण उसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं दोनों को। तो इसको लिखा हमने दैट इज 4BP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। लार्जर को पहले लिखना, स्मॉलर को बाद में, वो आगे हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो बेटा ये 4 लिख के मैंने जो ब्रैकेट करना है उसमें लिखना है x स्क्वायर, दैट इज BP स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, एंड AP स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर पुट अप कर दिया। आगे 4 इनको जो मल्टीप्लाई करेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y 4 9s are 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। जस्ट लाइक यस्टरडे ऑल्सो, इस स्टेप में collecting the like terms together, this will be our 4x square, तो इसके पास ये x square आ गया, it becomes minus x square, then it is 4y square, तो इसके पास में ये y square आ गया, तो बेटा minus y square, फिर लिखा हमने minus 24y, उधर कोई y वाला टर्म नहीं है, पर minus 4x को इधर बुला लेते हैं प्लस 4x, फिर ये रहा आपका 36, उधर एक नंबर है 4, उसको इधर बुला लेते हैं, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड इन द लास्ट स्टेप इट विल बी 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3y स्क्वायर, देन इट इज माइनस 24y प्लस 4x
plus 36 minus 4 is 32 is equal to 0. Congested here, but you can adjust. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये सारी टर्म्स अगर 3 से डिविजिबल होती तो कर दिया जाएगा, बट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 3, इसमें फाइनल आंसर एक लाइन मुझे लिखना था, नीचे जगह नहीं है उसके लिए। आप इतना लिखने के बाद में उस लाइन को वहां से लेके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे हमको लिखना था इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। क्लियर? तो ये हमने थर्ड प्रॉब्लम कर लिया है, और थर्ड प्रॉब्लम हमने करने के बाद में दो प्रॉब्लम्स होमवर्क बनते हैं। कौन से दो प्रॉब्लम्स होमवर्क बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, उसके बाद में कौन सा प्रॉब्लम्स आपको करना है उसका बात करते हैं। सो आप समझ गए हो, आपको पॉज करके इसको नोट करना है, और इसको नोट करके इसका इमेज निकाल के तुरंत मुझे पहले सेंड करो, फिर आगे करेंगे, शुरू करो। कम स्टार्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है कि थर्ड प्रॉब्लम लेने के बाद जब हम लोग 6th प्रॉब्लम ले रहे हैं, मतलब 4th और 5th प्रॉब्लम आपको करना है इस प्रॉब्लम के बाद में। ठीक है बेटा? चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अगेन वी आर गिवन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज A 1 6, another point is B 3 5, and we have to find the equation of locus of P such that AB, जो सेगमेंट AB है ना, सेगमेंट AB subtends right angle at point P। उन्होंने वो भी आगे बता दिया कि एंगल PAB कितना होने वाला है, that is going to be 90 डिग्री। दिखने में कैसा दिखेगा रहेगा, ये जो हमारा सेगमेंट है ना, सेगमेंट AB, ये सेगमेंट AB एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है बेटा P, वहां पे राइट एंगल फॉर्म करता है। सेगमेंट AB forms a right angle at point P such that angle PAB is equal to 90 डिग्री। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसमें एंगल APB चाहिए था, करेक्ट, such that angle APB is equal to 90 degree। Okay, fine. So you can see angle APB is equal to 90 degree। तो पॉइंट P का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे होता है देखते हैं। जस्ट लाइक अगेन प्रीवियस प्रॉब्लम, और आप स्वयं भी कर सकते हो। तो बेटा ये रहा हमारा x1 y1, और ये रहा हमारा x2 y2। थोड़ी देर बाद में हम इसको x1 और इसको y1 बोलने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा मदद करिए मुझे। देखो मैं इतना लिखता हूँ, therefore आप समझ गए होंगे, therefore by distance formula you have to find AP square is equal to the formula is, एक ही बार लिखेंगे हम लोग फार्मूला, हर बार लिखेंगे x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। चलो बेटा AP स्क्वायर फाइंड आउट करो और BP स्क्वायर फाइंड आउट करो, डू इट। लेकिन उसके लिए पॉज करिए, सी पॉज द क्लिप एंड फाइंड AP स्क्वायर एंड BP स्क्वायर। सो चेक योर आंसर। हमने पहले AP स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद में इसको x1 y1 बोल के हमने इन दोनों को रिलेट करते हुए BP स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है, जो आप नीचे देख सकते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग AP स्क्वायर एंड BP स्क्वायर, परंतु हमें एक चीज का और जरूरत पड़ेगा, और वो है हमारा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ना हम लोग ये AB का बात करते हैं ना, तो इसको x1 y1 बोल दिया बेटा, और हमने इसको x2 y2 बोल दिया, और हमें AB स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ताकि हमारे पास सब आ जाता है उसके बाद में। सो लेट अस गो फॉर AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज नाउ x2
minus x1, देखो x2 minus x1, so I will write 3 minus 1 whole square, y2 minus y1. तो बढ़िया टेक में किया है आपने. It is now 5 minus 6 whole square, 3 minus 1 whole square and 5 minus 6 whole square now becomes 2 whole square. 5 minus 6 is minus 1 whole square, which is 4. Negative number का भी square positive होता है, so it is 1. So I get AB square is equal to 5. In this way, as far as triangle APB is concerned, we are having everything. AP square, BB square, AB square. Equation of locus find out करना है. According to them, the triangle APB is a right angle triangle. तो हमने कहा as triangle APB is a right angle, therefore पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद होगा, बढ़िया. AP स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. ये क्या था? ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम. AP square plus BB square is equal to AB square. Now AB square we are having is x square minus 2x plus 1 plus y square minus 12y plus 36. ये लिखा हमने AB square plus BB square लिखते हैं. तो BB square का वैल्यू है बेटा हमारे पास में x square minus 6x plus 9 plus y square minus 10y plus 25. ये रहा AB square, और जो AB square है जो अभी फाइंड आउट किया that is equal to 5. इनको ना थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके हमको फाइनल आंसर यहाँ पे रेस करना है. तो फाइनल आंसर आ जाता है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखो लाइक टर्म्स x वाला टर्म्स, माइनस 2x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x. नंबर्स को जान दो, नंबर्स को बाद में बात करते हैं, नंबर्स को छोड़ देते हैं. y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2y स्क्वायर, y माइनस 12y माइनस 10y माइनस 22y. तो बेटा सारे x स्क्वायर आ गए, x माइनस 2x माइनस 6x वो भी आ गए, y स्क्वायर भी आ गया, y माइनस 12y माइनस 10y माइनस 22y वो भी आ गया. अब रही बात नंबर की, तो ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, दिस इज अ नंबर, दिस इज आल्सो अ नंबर. तो इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग. 1 प्लस 36 is 37, then 9 is 46. 1 plus 36 plus 9 is 46, और 46 के बाद में वो 25. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 46, इन तीनों को जोड़ के 46, ये रह गया तो इसको भी लिखता हूँ मैं 25. वो जो 5 बाहर है उसको भी अंदर बुला लो, -5 is equal to 0, which is 2x square minus 8x plus 2y square minus 22y plus, अब देखो 25 में से 5 गया 20, और 46 plus 20 becomes 66 is equal to 0. Because all of them are divisible by 2, तो हमने लिखा divide by 2, divide by 2, we get x square minus 4x plus y square minus 11y plus 33 equal to 0 is required equation of locus. Is that okay? चलो ऐसा था. तो बेटा ये प्रॉब्लम फिनिश होने के बाद में 4 और 5 नंबर का प्रॉब्लम आपको अभी सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके
वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके उसका इमेज निकाल के मुझे तुरंत सेंड करना है, उसका इमेज निकाल के मुझे सेंड करना है। ठीक है बेटा, चलो कम स्टार्ट। इसको नोट करेंगे बेटा, और इसको नोट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, मतलब 4 और 5 सॉल्व करेंगे। हमारा कल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो इससे पूरी तरह से अलग रहेगा। और टुमारोज टॉपिक विल बी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो।